Hello gingers and chilies, welcome back to my channel Chemistry का बच्चन. Now we are moving to the last part of group 16 and for 10th class ICSE students this is the chapter called sulfuric acid first part. ठीक है, तो जो मैं 12th class का part बोलूँगा वो 10th ICSE वालों को नहीं करना है. ठीक है, so initial part is of course related to both 10th ICSE as well as 12th. As always I do, initial part of my lecture is always an introduction and uses of that specific substance which I am teaching. तो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सल्फ्यूरिक एसिड. इसको बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स. क्यों बोलते हैं किंग ऑफ केमिकल्स? बिकॉज दिस इज द केमिकल विच इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज. अगर आपका सल्फ्यूरिक एसिड कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है और आपका सल्फ्यूरिक एसिड कंट्री के अंदर बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रहा है तो समझ जाना उस कंट्री का ग्रोथ बहुत ही बढ़िया है. The country is doing really very well. Right? China is number one in the production and consumption of sulfuric acid, and that's why it is being considered going to be one of the superpower. Corona का already चल रहा है, so everyone knows कि China already one of the superpower में आ चुकी है, entry ले चुकी है, but this is also playing one important part with respect to the growth and development of country. Sulfuric acid, इसलिए इसको king of chemicals बोलते हैं. अब आते हैं इसके इंट्रोडक्शन में. इंट्रोडक्शन में मैंने आपको टोटल 7 पॉइंट्स दिए हैं और 2 पॉइंट्स और लिखा. सबसे पहले वी ऑल हैव टू नो दैट इट इज कॉल्ड किंग ऑफ केमिकल्स. फिर आते हैं इसके पहले पार्ट पे. इसका दूसरा नाम है ऑयल ऑफ विट्रियोल. यू ऑल हैव हर्ड ऑफ ब्लू विट्रियोल CuSO4.5H2, बट इट वाज फर्स्ट टाइम प्रिपेयर्ड फ्रॉम ग्रीन विट्रियोल. याद रखो, इसको बोलते हैं ग्रीन विट्रियोल, जो ग्रीन इंक में भी यूज होता है, FeSO4.7H2. ठीक है, सो दिस when being broken down then we get some Fe2O3 plus SO2 plus SO3 plus 14 molecules of water. और वो SO3 जब वाटर के साथ रिएक्ट होता है then you get H2SO4. so old name is oil of vitriol. जैसे HCl में मैंने बताया था, the another name is muriatic acid और marine acid. तो fill in the blanks के लिए याद रखना है. Where you find sulfuric acid? It is a mineral acid. It is not an organic acid. Organic acid you get it from plants or animals mainly, or maybe synthesized. But this is the one which you get it from Earth's crust. So you can get even in traces in free state in the hot springs or in the sulfide beds. What are sulfide beds? Mainly the sulfur beds which are present under the Earth's crust. जो आप sulfur में पढ़ चुके. And in combined state it is present in mineral salts. And mainly this mineral salt, when we are talking about, they are going to be metallic sulfates only. So this is its occurrence where you find the physical properties. अगर आप देखेंगे जो मैं इंट्रोडक्शन में डालता हूँ, it is a colorless, odorless, इसको colorless बोलता हूँ मैं, odorless and sour taste because of its acidic nature. Second thing, dense, oily, hygroscopic liquid. Dense है, oily nature है, hygroscopic means it absorbs moisture from the surroundings. It has a property to absorb moisture from the surroundings. इसलिए बाद में पढ़ेंगे it is a very good dehydrating और drying agent also. ठीक है, तो ये आपका हो गया point number 4. उसके बाद it is corrosive in nature like HCl. That means if it falls on your skin, it can char down your skin. पूरी skin को black कर देगी. So very highly corrosive in nature and char down the skin. Please remember that also. Heavier than water. It is heavier than water. That's why always what you are going to do, you are going to find that acid has to be added to the water. Never add water to an acid. ध्यान से सुन लो ये question. Always add acid to the water. Never add water to the acid for the dilution. Why? Because first of all, acid is soluble in water in all proportions. It is heavier also, so it will go inside it and dissipate down its heat to all the directions, and due to that spurting is not going to take place. What is spurting? Suddenly the water is going to come up. अगर आप उल्टा करते हो, उल्टा मतलब एसिड के अंदर पानी डालते हो, then what is going to happen? Spurting will take place. That's why never add water to the acid. Always add acid to the water, and that also from the side of the test tube or side of the vessel. slowly धीरे धीरे, नहीं तो स्पर्टिंग हो जाएगी. स्पर्टिंग क्या होती है? अगर आप पोटेटोज ड्राई अपने पोटेटोज काट के आप अगर उसको तल रहे हो
आपको कैसे डालने चाहिए पोटैटो? साइड से, कढ़ाई से ऐसे फेंकोगे तो स्पर्टिंग होएगा, ऑयल ऐसे उड़ेगा, एंड दैट इज कॉल्ड स्पर्टिंग. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर. और वहां पे मैंने आपको एक गिव रीजन भी समझा दिया है. सो एवरीवन हैज टू नो दैट ऑलवेज acid is added to the water, never the water is being added to the acid. उसके बाद आते हैं soluble in water in all proportions. तो पानी के अंदर ये soluble है, and it also has a property to form a constant boiling mixture. याद रखो, it also has a property to form a constant boiling mixture at 338 degrees Celsius for 98.5% acid. At 338 degrees Celsius, and what is the percentage? 98.5% acid. What is constant boiling mixture? बताया हुआ है, constant boiling mixture is the mixture where the proportion of both acid as well as water is going to remain same even if we are going to heat them, right? Both of them are going to evaporate in equal proportion, so their percentage always remains same. And you cannot concentrated beyond 98.5% in this case. By what method? Distillation method. ठीक है? तो these are the 7 points which we all have to know with respect to the introduction. 8 point मैंने बोला, it forms a constant boiling mixture at 338 degrees Celsius for 98.5% acid. ठीक है? So that also everyone has to know it very very well. और last point भी आपको यहाँ पे लिख के रखना है, that pure acid is a bad conductor of electricity, but dilute acid में जब आप थोड़ा सा acid के अंदर पानी डाल देते हो, then due to the presence of H plus and OH minus ions or H2SO4 also breaks down into hydronium ions, it becomes a good conductor of electricity. So वापस repeat कर रहा हूँ, pure acid is a bad conductor of electricity, but dilute acid is a good conductor of electricity. So that is about the introduction. Let's go to uses. अब आप ये H2SO4 की बात कर रहे हैं, मैंने कुछ ही यूजेस लिखे हैं, बट इट हैज, ऐसे लिख सकते हैं, इतने यूजेस है H2SO4 के. ओके, नाउ H2SO4 के जो फेमस यूजेस है, राइट, वो सब हमने बोर्ड्स पे लिख दिए हैं. पहला है आपका फर्टिलाइजर्स. सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स. 2 फर्टिलाइजर्स मेन मैंने लिखे हैं. पहले का नाम है अमोनियम सल्फेट और दूसरे का नाम है सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम. सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम का फॉर्मूला याद कर लेना, CH2PO4 ट्वाइस प्लस CSO4. भूलना नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मेनली नीट स्टूडेंट्स लिख ले. सेकेंड पार्ट, इट इज यूज्ड इन स्टोरेज बैटरीज. आपकी गाड़ी के अंदर एक आगे ब्लैक कलर का बॉक्स पड़ा होता है, विच इज योर एक्साइड बैटरी. सबने देखा होगा, अगर उसको खोल के देखा है तो उसके अंदर सल्फ्यूरिक एसिड होती है. So it is used in storage batteries, और इसका दूसरा नाम है lead accumulator batteries. 10th वाले खाली storage batteries ही याद रखेंगे. 12th वाले lead accumulator batteries भी बोलते हैं इसको. Third thing, it is used in the manufacture of fibers. Fibers means synthetic material which is used for making clothes or textile industries में use होते हैं, और ropes and all. Rayon means it shines like sun rays, so वहां से नाम आया rayon. It is a सेमी सिंथेटिक फाइबर, मतलब आधा नेचुरल और आधा मैनमेड केमिकल है ये. एंड नायलॉन, न्यूयॉर्क लंदन में एक टाइम पे ही ये बना था, इसलिए नाम मिला नायलॉन. नायलॉन, एंड दैट्स व्हाई द नेम इज बीइंग गिवन. एंड ऑफ कोर्स नायलॉन के आपने रोप्स देखे हुए हैं. नायलॉन इज योर टूथब्रश ब्रिस्टल्स. नायलॉन इज यूज्ड इन मेकिंग ऑटोमोबाइल टायर्स. सो इनडायरेक्टली बहुत जगह पे यूज होता है. एक्सप्लोजिव्स बनाने के काम आते हैं. पहला एक्सप्लोजिव का फुल फॉर्म है ट्राई नाइट्रोटोल्यून, TNT, ट्राई नाइट्रोटोल्यून. 10th वालों को खाली नाम याद रखना है. ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन, TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन. एंड पिक्रिक एसिड. पिक्रिक एसिड क्या होता है? पिक्रिक एसिड इज मेनली फॉर 12th क्लास. 10th क्लास वालों को याद नहीं रखना है. 2,4,6 trinitrophenol. 2,4,6 trinitrophenol. Is it an acid? No, it is not an acid. It's a phenol. 10th वालों को खाली यूजेस याद रखने हैं, तो जो एक्स्ट्रा बोल रहा हूं खाली सुनो फॉर योर नॉलेज. It is used in the preparation of HCl and HNO3, and everyone knows both the acids are volatile acids
and H2SO4 is what acid? Non-volatile acid. So non-volatile acid is used in the preparation of two famous mineral acids, HCl and HNO3. It is used in pickling of metals. HCl में भी पढ़ाया था. What is pickling of metals? Pickling of metals means metals की जो surface के ऊपर impurities होती हैं उसको आपको निकालना है तो पहले आप H2SO4 या HCl लगाओ. So all the impurities or all the oxide layers will be thrown off और फिर आप galvanization करो. What is galvanization? Mainly to cover the metal with zinc. फिर आता है आपका डाइज एंड ड्रग्स. डाइज आर कलरिंग एजेंट्स एंड ड्रग्स मींस मेडिसिन्स. उनके बनाने के भी ये काम आते हैं. सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर टू एवरीवन. सो दैट इज अबाउट द सल्फ्यूरिक एसिड का पहला पार्ट विच वी कॉल इट मेनली द इंट्रोडक्शन एंड द यूजेस. प्लीज कॉपी. नाउ लेट्स सी 4 डिफरेंट वेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. तो 4 डिफरेंट मेथड्स है जो आपको याद रखने हैं. दिस आर कॉल्ड जनरल मेथड्स. ओके, तो पहला है आपका when sulfur is going to react with HNO3 conc, what we are going to get it is NO2 plus sulfuric acid. NO2 is which gas? Everyone knows it is a reddish brown gas. So NO2 we are going to get, sulfuric acid we are going to get, and water we are going to get it. ठीक है, तो ये आपकी हो गई वोलेटाइल एसिड. और वोलेटाइल एसिड से मुझे क्या मिल गया? I got non-volatile acid. बैलेंस आप कर देना. लेफ्ट में मैंने 6 डाल दिया तो अपने आप बैलेंस हो जाएगा. सेकेंड, SO3 को अगर मैंने पानी में डाला so I am going to get H2SO4. But this is a dense fog, so not a good method. So dense fog of sulfuric acid is being obtained, which cannot be easily liquefied. So it is not a good method, but still जनरल मेथड में आप इसको डाल सकते हो. यस, डाल सकते हो. उसके बाद हाइड्रोलिसिस ऑफ सल्फ्यूरिल क्लोराइड. मतलब पानी डाला अगर मैंने सल्फ्यूरिल क्लोराइड में, देन व्हाट विल हैपन? तो SO2Cl2 प्लस वाटर, that is also going to give it to me H2SO4 plus HCl. So that is your hydrolysis of sulfuryl chloride. And last one is from chlorine water also we can get. Chlorine water में अगर मैंने क्या डाल दिया? SO2. So chlorine plus water plus SO2 is going to give me HCl plus H2SO4. So these are the 4 general methods by which sulfuric acid can be prepared. यहाँ ज़्यादा मेरा कुछ काम है नहीं, आपको लर्न करके रखना है. ये तो क्या इजी है. सेकंड वाला तो ये पहले कर लेने का. नया नाम सल्फ्यूरिल क्लोराइड फॉर 10th क्लास स्टूडेंट्स. प्लीज रिमेंबर, लिख के रखो और बार बार रिवाइज करो. क्लोरीन वाटर 1, वेरी वेरी इजी. क्लोरीन याद रखो और वाटर और SO2 डाल दो तो ये आ जाएगा. सब में अगर आप देखोगे ज्यादातर HCl और H2SO4 ये दोनों में कॉमन है, तो ये दोनों साथ में लर्न करना. ठीक है, जब भी HNO3 होता है तो रेडिश ब्राउन गैस तो ज्यादातर रिलीज होती है, तो वो भी इजी. ठीक है, सो ये आप वैसे भी HNO3 में वापस रिएक्शन पढ़ने वाले हो. सो दिस इज गोइंग टू बी रिपीटेड, बट आपको ये चारों के चारों एक के बाद एक याद रखनी है. सो दैट इज अबाउट जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन. लेट्स गो टू now most important part of sulfuric acid, and it is called industrial method of preparation. Now we move to the industrial manufacture of sulfuric acid. भाई ये king of chemicals है, तो इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चर होना बहुत जरूरी है. जब अमोनिया पढ़ोगे तब हेबर्स प्रोसेस, नाइट्रिक एसिड ओस्टवाल्ड्स प्रोसेस, क्लोरीन डेकॉन्स प्रोसेस, एंड सल्फ्यूरिक एसिड के इंडस्ट्रियल मेथड को बोलते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस. अब इसका पहले मैं आपको कोड वर्ड दे रहा हूं जिससे आपको याद रहे कि इसके चारों के चारों रिएक्शंस आपको कैसे याद रखने. तो पहले कोड वर्ड लिख लो. इसका कोड वर्ड है यहां पे सल्फर कोट डाइल्यूशन. इतना ही याद रखना है इसमें, तो आपका काम बहुत इजी हो जाएगा. सल्फर कोट डाइल्यूशन.
अब इसका मतलब क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहले स्टेप 1 में जाते हैं। स्टेप 1 में आपका सल्फर को अगर मैं O2 के साथ हीट करता हूं, व्हाट आई एम गोइंग टू गेट इट इज SO2। तो स्टेप 1 में आपको सल्फर डाइऑक्साइड प्रिपेयर करना है कैसे भी, या आप दूसरा मेथड यूज कर सकते हो 4FeS2 plus 11O2 on heating gives what? On heating gives 2Fe2O3 plus 8SO2. So that is your first method जहां पे आप सल्फर को यूज करोगे to produce what? Sulfur dioxide. Is it clear to everyone? So first step is you are going to get sulfur dioxide gas and traces of sulfur trioxide may also be there. याद रखना for knowledge. Traces of sulfur dioxide may be present. And this burns with which flame? Blue flame. तो ये स्टेप नंबर 1 है, इसको ध्यान से देखो और दिमाग में इसको आप स्टोर कर लो। उसके बाद जाते हैं स्टेप 2 में, जिसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट टावर। ठीक है, तो स्टेप 2 जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्टैक्ट टावर। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस CO? कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कैटलिस्ट के प्रेजेंस में हम लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, इसलिए बोलते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। कॉन्टैक्ट टावर भी यहां से याद रख सकते हो और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन भी याद रख सकते हो। सो स्टेप 2 इज फ्रॉम दिस कोड वर्ड इज कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ठीक है, पहले वाले स्टेप को बोलते हैं हम लोग पाइराइड बर्नर्स। पाइराइड का मतलब होता है सल्फर, तो इजी है, सल्फर याद रहा तो सल्फर बर्नर भी लिख सकते हो, पाइराइड बर्नर्स भी लिख सकते हो। सो सेकेंड स्टेप इज कॉन्टैक्ट टावर और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। अब हम लोग क्या ले रहे हैं देखते हैं। तो ये लिया मैंने 2SO2 प्लस O2, रिवर्सिबल रिएक्शन, वी गेट 2SO3 प्लस 45 किलो कैलोरीज। सो रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। ठीक है, द रिएक्शन टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ वेनेडियम पेंटॉक्साइड और प्लैटिनम। टेम्परेचर इज समवेयर 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। सो टेम्परेचर भी याद रखो, समवेयर 450 to 500 डिग्री सेल्सियस, एंड प्रेशर इज 1 to 2 एटमॉस्फेयर। थोड़ी देर में डेप्थ में भी समझाऊंगा। तो ये आपका हो गया कैटालिटिक ऑक्सीडेशन स्टेप, दैट इज स्टेप नंबर 2। और इस स्टेप में वी कैन यूज पोटेशियम ऑक्साइड एज प्रोमोटर। व्हाट इज प्रोमोटर? One which increases the efficiency of a catalyst, उसको बोलते हैं हम लोग प्रोमोटर। अब स्टेप 3 पे आते हैं, AT। AT का मतलब हुआ एब्जॉर्प्शन टावर। ठीक है, तो स्टेप 3 में क्या करेंगे हम लोग? स्टेप 3 में SO3 जो आपको मिला है वो हम उसको डाल देंगे H2SO4 में और दोनों को ऐड कर देंगे। H2 पहले, फिर H2 और फिर O7। इसको बोलते हैं ओलियम। व्हाट इज ओलियम? पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो, यू आर गोइंग टू गेट पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। क्यों नहीं डायरेक्टली पानी ऐड किया? थोड़ी देर पहले बताया था, वापस बताऊंगा। और उसके बाद है लास्ट स्टेप, स्टेप 3 का ही डाइल्यूशन। क्या करेंगे हम लोग? H2H2O7 में पानी डाल देंगे, इसको बोलते हैं डाइल्यूशन। व्हाट यू आर गोइंग टू गेट इट इज 2H2SO4 which is going to be 98%. How much? 98% concentrated. So these are the 4 steps how you prepare sulfuric acid in industry. Code word है sulfur, coat, dilution। और फिर ये आपको एक रिएक्शन, दोनों में से कोई भी एक याद रखो, बेटर टू लर्न सेकेंड वन। 2, 3, 4 मार्क्स का आ गया, तो 4 रिएक्शंस लिखनी है आपको ऑर्डर में।
and that is what we call it the contact process. Copy कर लो. Okay. Now let me explain you one by one all the 4 steps. सबसे पहले आपको याद रखना है सल्फर कोट डाइल्यूशन. So आपको H2SO4 प्रिपेयर करना है मेनली बाय हाउ मेनी स्टेप्स? 4 रिएक्शंस. सबसे पहले स्टेप में क्या चाहिए हमको? सल्फर डाइऑक्साइड चाहिए. दैट यू रिमेंबर बाय 4FeS2 प्लस 11O2. मतलब आयरन पायराइड को जब मैंने हीट किया तो मुझे मिला मेनली SO2. ये SO2 को मैं स्टेप नंबर 2 पे लेके गया एंड उसको और ऑक्सीडाइज कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ अ कैटलिस्ट कॉल्ड वेनेडियम पेंटॉक्साइड और प्लैटिनम. उसका कंडीशंस याद रखो 450 to 500 डिग्री सेल्सियस एंड प्रेशर इज 1 to 2 एटमॉस्फेयर. ठीक है. एंड वी ऑल हैव टू नो वी गेट सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस. इस सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस को हमने क्या किया? एब्जॉर्प्शन टावर में डाला और धीरे धीरे ऊपर से सल्फ्यूरिक एसिड के को फाउंटेन के जैसे या स्प्रे के जैसे नीचे उसके ऊपर छोड़ा. सो व्हाट वी आर गोइंग टू गेट इट इज ओलियम और पायरोसल्फ्यूरिक एसिड. और तीसरा नाम भी लिखना है, लिख सकते हो फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड. फ्यूमिंग FUMING फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड. एक बार ये हो गया, उसके बाद उसको फाइनली डाइल्यूट कर दिया पानी में. सो यू गॉट 98% सल्फ्यूरिक एसिड विच यू कैन यूज इट फॉर डिफरेंट पर्पस एज यू ऑल हैड सीन इन यूजेस. ठीक है. अब इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो आपको मालूम होने चाहिए. पहला क्वेश्चन है व्हाई ऑक्सीजन इज प्रिफर्ड ओवर एयर. व्हाई यू आर यूजिंग O2 ओनली, व्हाई नॉट द एयर? देखो, अगर आप खाली ऑक्सीजन डाइल्यूट करके या ऑक्सीजन सेपरेट कर दोगे हवा में तो आपकी एक तो हीट एनर्जी कम लगेगी. अगर आप पूरी की पूरी एयर यूज करोगे तो क्या होएगा? आपकी कुछ एनर्जी नाइट्रोजन के लिए भी चली जाएगी विच इज अनरिएक्टिव इन नेचर. सो टू प्रिवेंट द वेस्टेज ऑफ हीट वी ओनली यूज ऑक्सीजन एंड वी डोंट यूज एयर. बिकॉज व्हाट इज एयर? एयर इज 78% नाइट्रोजन एंड 21% ऑक्सीजन. तो हमको ऐसा नहीं चाहिए. Is it clear to everyone? So we use only O2. तो क्वेश्चन अगर पूछ लिया why O2 is preferred over air in sulfur dioxide, mainly to prevent the wastage of heating with unreactive nitrogen. So पहला पार्ट क्लियर हो गया गिव रीजन का. दूसरा क्वेश्चन आ सकता है that gaseous mixture of SO2 and O2 are passed through dusting and scrubbing tower to remove dust as impurities. Okay, so अब आपको सल्फर डाइऑक्साइड मिली. एवरीवन नो सल्फर डाइऑक्साइड जो आपको मिल रही है, दिस सल्फर डाइऑक्साइड इज गोइंग टू हैव इंप्योरिटीज. मेनली इसके पास 2 इंप्योरिटीज होती है, याद रखो. एक डस्ट पार्टिकल्स, इसलिए इसको हम लोग मेनली कौन से टावर से पास करते हैं? स्क्रबिंग एंड डस्टिंग टावर से पास करते हैं. ओके. और दूसरी इंप्योरिटी इसके पास होती है मेनली द आर्सेनियस ऑक्साइड. कौन सी ऑक्साइड? आर्सेनियस ऑक्साइड इसके पास इंप्योरिटीज होती है. तो याद रखो AS2O3 is also an impurity. तो इस impurity को अगर आपको निकालना है तो आप उसको पास कर दो FeOH थ्राइस के चैम्बर से, तो ये impurity भी आपकी निकल जाएगी. So ये impurity को निकाल के फायदा क्या है भाई? ये impurity को निकाल के फायदा ये है कि ये impurity जो है it can poison the catalyst. This can poison the catalyst. That means catalyst की efficiency को reduce कर देगा धीरे धीरे, which is not good for the industrial manufacture of sulfuric acid. बराबर है. तो आर्सेनियस ऑक्साइड को आपको हटाना ही पड़ेगा, राइट. उसके बाद आता है इन दोनों कैटलिस्ट में से कौन सा कैटलिस्ट बेटर है और क्यों. तो याद रखो वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज प्रिफर्ड ओवर प्लैटिनम ड्यू टू 2 रीजंस. फर्स्ट थिंग, वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज चीप. एंड सेकेंड थिंग, जो टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है तो लिख लेना, वेनेडियम पेंटॉक्साइड इज नॉट बीइंग पॉइजन्ड बाय आर्सेनिक impurities या आर्सेनियस ऑक्साइड. ArSeNiOUS ऑक्साइड, आर्सेनियस ऑक्साइड 12th वाले. 10th वाले खाली लिख सकते हैं आर्सेनिक impurities. Arsenic impurities only poison the platinum. Vanadium pentoxide is not poisoned by it. Okay, so who is better? Vanadium pentoxide. And उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है what promoter is used. So याद रखो K2O is used as a promoter. What is promoter? Promoter is the substance which increases the efficiency of a catalyst. Is that clear? So catalyst क्या होता है? Which makes the reaction faster. और promoter क्या होता है?
जो कैटलिस्ट की हेल्प करता है कि रिएक्शन और बेटर हो और बेहतर हो। इज इट क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है आपका दैट कैटलिस्ट मास इज ओनली इनिशियली हीटेड, राइट? व्हाई नॉट अगेन एंड अगेन? सो वी ऑल हैव टू नो इन द सेकेंड स्टेप वी आर गेटिंग 45 किलो कैलोरीज। कहां पे? यहाँ। This 45 kilocalories you can reuse it again and again. So initially only it is heated at 450 to 500 डिग्री सेल्सियस। बाद में जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि आपको हीट मिल रही है, तो बाहर से हीट लेने की जरूरत नहीं है। जब खुद ही रिएक्शन में हीट प्रोड्यूस हो रही है, उस हीट को आप क्या करोगे? स्टोर करोगे and you can reuse it again and again. So that's why catalyst mass is only initially heated as formation of SO3 is exothermic reaction and heat can be reused. Okay, next question is why temperature is used 450 to 500 degree Celsius only? देखो, reaction exothermic है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन जब भी होता है तो बच्चे लोग अपने नोटबुक में लिख डालो, लो टेम्परेचर फेवर्स द रिएक्शन टू प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब लो टेम्परेचर allows the reaction to proceed in forward direction. Is that clear? Endothermic होता तो आप लिखोगे that the reaction is going to proceed at high temperature. तो ये पहले लिख लो, मेनली 10th वाले, और इसको बोलते हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। ठीक है, 12th वालों को मालूम है, 10th वाले प्लीज लिख डालो, ली चैटलियर्स प्रिंसिपल बोलते हैं इसको। सो अगर आपने लो टेम्परेचर लिया देन द रिएक्शन विल बी वेरी वेरी स्लो। हाई ले लिया देन इट में डैमेज, तो इसलिए ऑप्टिमम टेम्परेचर लेते हैं, न ज्यादा न कम, बल्कि ऑप्टिमम, विच इज गोइंग टू बी बेस्ट फॉर द इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सेकेंड क्वेश्चन आपको आ सकता है दैट व्हाई 1 to 2 atmospheric pressure is only being used. Okay, so what is the optimum pressure used is 1 to 2 atmosphere. अब ध्यान से सुनना, मेनली ये भी ली चैटलियर्स प्रिंसिपल ही बोलता है। देखो यहां पे आप देखोगे 3 वॉल्यूम्स ऑफ रिएक्टेंट्स आर देयर। कितने वॉल्यूम्स है? 3। कैसे मालूम 3? यहाँ 2SO2 लिखा है, यहाँ कुछ नहीं लिखा है, तो 1O2, सो 2 + 1 कितना हो गया? 3। सो लेफ्ट हैंड साइड में कितने वॉल्यूम्स है? 3। राइट हैंड साइड में कितना वॉल्यूम है? खाली 2। वो मत काउंट कर देना, वो एनर्जी इवॉल्व है। सो हाउ मच अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज फॉर्म? 2 वॉल्यूम्स। यहाँ पे कितना फॉर्म हुआ? 3 वॉल्यूम्स, बराबर है। जब भी वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्ट इज लेसर देन वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट्स, लिख लेना, देन हाई प्रेशर इज यूज्ड। What is used? High pressure is used. तो आप बोलोगे सर आप तो ऑप्टिमम प्रेशर यूज कर रहे हो। यस, हाई प्रेशर यूज नहीं करना है, बल्कि आपको ऑप्टिमम प्रेशर ही यूज करना है। बिकॉज अगर हम लोग हाई प्रेशर यूज करेंगे तो इसमें आपके जो इंडस्ट्रियल एपरेटस है या इंडस्ट्रियल मशीन्स है वो लेड पाइप्स की बनी हुई है, दे में डैमेज एट हाई प्रेशर। ओके, देयर आर सम acid resisting towers which may break down. Okay, decomposition हो सकता है porous catalyst का भी। That's why optimum pressure of 1 to 2 atmosphere is being only used. High pressure actually use करना चाहिए according to ली चैटलियर्स principle, but हम लोग high pressure use नहीं करेंगे। कब use करते हैं high pressure? When the volume of the products is lesser than the volume of the reactants, then according to ली चैटलियर्स principle, the pressure should be high. बट हमने ऑप्टिमम यूज किया है। हाई क्यों नहीं यूज कर रहे हैं? क्योंकि आपकी जो इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चर में मशीन्स हैं, दे में ब्रेक डाउन, एसिड रेजिस्टेंट टावर्स हैं, लेड पाइप्स हैं, कैटलिस्ट में डिकम्पोज डाउन। ओके, सो दैट्स व्हाई यू यूज 1 to 2 एटमॉस्फेयर ओनली। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद आप स्टेप 3 में सोच रहे होगे सर ने SO3 के साथ वाटर क्यों नहीं ऐड कर दिया भाई, तो सीधा H2SO4 मिल जाता। H2SO4 के प्रिपरेशन में ही आप H2SO4 डाल रहे हो जो पहले से प्रिपेयर्ड है। यस, द रीजन बिहाइंड इज कि SO3+ अगर वाटर डाला देन वी गेट डेंस फॉग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। डेंस फॉग मिल जाएगा विच इज वेरी डिफिकल्ट टू लिक्विफाई। इट इज गोइंग टू बी अ वेरी टीडियस प्रोसेस। इसलिए हम लोग SO3 में पानी नहीं डालते हैं एंड डायरेक्टली वी आर गोइंग टू फाइंड कि हम इसको पहले H2SO4 के स्प्रे के साथ ऐड करते हैं, पहले ओलियम फॉर्म करते हैं और फिर
उसको डाइल्यूशन में डालते हैं, देन यू आर नॉट गोइंग टू फेस दैट प्रॉब्लम, दैट इज डेंस फॉग ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, यू आर नॉट गोइंग टू गेट इट. ठीक है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉन्टैक्ट प्रोसेस, तो ये सब पॉइंट्स आपके कॉन्टैक्ट प्रोसेस को क्लियर करते हैं. तो एक बार और देख लेते हैं कॉन्टैक्ट प्रोसेस को फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग. रिएक्शंस कैसे याद रखने हैं? सबसे पहले आपको याद रखना है सल्फर कोड डाइल्यूशन, फिर दिमाग में फिट करो सल्फर बर्नर्स और पायराइट बर्नर्स 4FeS2 प्लस 11O2 गिव्स यू 2Fe2O3 प्लस 8SO2, फिर 2SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3 प्लस 45 किलो कैलोरीज. अगर बुक में जूल्स में लिखा है तो कन्वर्ट कर दो, नहीं तो किलो कैलोरीज भी चलेगा. एंड ऑफ कोर्स क्या है एरो के ऊपर? एरो के ऊपर है वेनेडियम पेंटॉक्साइड और प्लेटिनम, राइट. टेम्परेचर है 450 to 500 डिग्री सेल्सियस. एंड ऑफ कोर्स व्हाट इज गोइंग टू बी द प्रेशर? 1 to 2 एटमॉस्फेयर इज द ऑप्टिमम प्रेशर. उसके बाद SO3 को हमने डाइल्यूट कर एब्जॉर्प्शन टावर में डाला, तो SO3 प्लस H2SO4 गिव्स ओलियम H2S2O7. 10th वाले पहली बार पढ़ रहे हो सो ध्यान से. उसका दूसरा नाम है पायरो सल्फ्यूरिक एसिड, तीसरा नाम है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड. और बाद में उसको डाइल्यूशन टैंक में डाल दिया तो यू आर गोइंग टू गेट 2H2SO4 विच इज 98%. गिव रीजंस में सब गिव रीजंस पॉइंट वाइज जैसे मैंने बताए हैं वैसे लिखते जाओ. ठीक है. एंड प्लीज रिमेंबर ICSE जो डायग्राम वाला पेज है दैट इज नॉट देयर इन योर पोर्शन. ठीक है. बाद में मैं व्हाट्सएप पे डाल दूंगा. सो दैट पेज इज नॉट देयर इन ICSE. जितना करा रहा हूं वो सब है. गिव रीजंस हैं जो मैंने लिखे नहीं है बट आपको बताएं. पहला गिव रीजन व्हाई ऑक्सीजन इज प्रिफर्ड ओवर एयर. Second, why vanadium pentoxide is preferred over platinum. Why optimum temperature 450 to 500 degrees Celsius is used. Why optimum pressure 1 to 2 atmosphere is being used. Why the heat is not being used again and again. Okay. Then why water is not added to SO3 but H2SO4 is being added. Right. So these are some of the important give reasons which everyone has to know it. So that completes the first part of sulfuric acid. I hope everyone got it. Now we will move to the second part in my next lecture. So, ciao.